Hope you all are well. In my last two videos, I explained about rounding of the values to the nearest 10, 100 and 1000. I also explained about estimating the values by using general rule. So, if you haven't watched those videos, the link is given into the description. So, today's topic is basically based on the estimation by general rule. And the today's topic is exercise 1.3 of your chapter first. So, let us begin. Exercise 1.3, question number first is estimate each of the following using general rule. आपको इन वैल्यूज को, ये एडिशन है, ये सब्ट्रैक्शन है, ये और एडिशन है और एक और आपको मिलेगा, तो आपको इन वैल्यूज को एस्टिमेट करना है बाय यूजिंग जनरल रूल. तो जनरल रूल का छोटा छोटा ओवरव्यू मैं आपको बताता हूं कि जो वैल्यू आपकी 100 तक लिखी हुई है तो आप उसे 100 में राउंड ऑफ करोगे. अगर कोई वैल्यू आपकी 1000 तक लिखी हुई है तो आप उसे 1000 में राउंड ऑफ करोगे. और अगर कोई वैल्यू आपकी टेंस में लिखी हुई है यानी 2 डिजिट में लिखी हुई है तो आप उसको उतने में ही राउंड ऑफ करोगे. ठीक है, तो शुरू करने से पहले आप चला देखिए इसको. ये पहली वैल्यू है 730 और दूसरी वैल्यू है 998. सो नाउ यू कैन सी बोथ वैल्यूज आर रिटन इन 100. तो आप 100 प्लेस को चेक करिए. इसका नेक्स्ट डिजिट 3 है, इसका मतलब 7 में कुछ ऐड नहीं होगा एंड लास्ट 2 डिजिट विल बी 0. And now this next digit is 9, so now this 9 will become 9 plus 1 10 and next 2 digit will be 0. So 730 can be written as 700 and 998 can be written as 1000. So 1000 plus 700 1700. This is your answer. So it is very easy and conventional method. Hope you are understanding. Let us move to the second question. This is 796 and this is 314. Now 796, the next digit is 9, so 7 plus 1 8, it will be 800 and the next digit of 3 is 1, so 3 will remain 3 and the next 2 digit will be 0. Now 796 will be written 800 and minus 300, 8 minus 3, yes, that is 500. So this is your answer. Let us move to the next question, that is the question number C. Now this both of the values are written to the 1000 place. So let us check the 1000 digit. This is 2 and this is 2. Both are the 2. And the next digit is 9 here and this is 8. So 12,904 will be estimated or will be rounded off to, because next digit is 9, so 9 यहाँ पे total तीनों digit 0 हो जाएंगे and 2 plus 1 3. It will be 13,000 and next 2888. इसका भी नेक्स्ट डिजिट जो है वो 8 है, इसका मतलब 2 plus 1 3. This will be 3000. So 12,904 will be written as 13,000 plus 3,000. The answer will be yes 16,000. So this is how you can solve these type of question by using general rule. And let us solve the D part of it. Let us solve the D part. What is the D part is saying? This is 28,292 minus 21,496. Okay, so these are two values. So now you can see very clearly that both of the values are written in 1000. Let us take the 1000 place first. Next digit is 2 here and next digit is 4 here. So both of the values won't change and next digit will be 0. आपकी कोई भी वैल्यू ये चेंज नहीं होंगी. So 28,292 will become 28,000 and 21,496 because next digit is 4. That will be rounded off to 21,000. Okay, so it will be 28,000 minus 21,000. The answer is 7,000. I hope you have understood. Okay, now let us move to the second question, and the second question is give a rough estimate by rounding off to nearest 100 and also a closer estimate by rounding off to nearest 10.
तो आपको यहाँ पे दो नए टर्म इंट्रोड्यूस कराए गए हैं, पहला रफ एस्टिमेट है, दूसरा क्लोजर एस्टिमेट है। तो फटाफट से इसके बारे में जानते हैं। लेट अस टेक अ वैल्यू, एक वैल्यू ले लेते हैं, जैसे 661 ले लेते हैं, ठीक है। अब ये क्या है, हमारी एक्चुअल वैल्यू है। क्या है, हमारी एक्चुअल वैल्यू है। अगर हम इस वैल्यू को नियरेस्ट 100 में, यानी नियरेस्ट 100 प्लेस कौन सा, ये, तो नियरेस्ट 100 में अगर इसे हम राउंड ऑफ करते हैं तो ये वैल्यू हो जाती है, क्योंकि नेक्स्ट डिजिट है 6, तो 6 + 1 700, ठीक है। अब इसी वैल्यू को अगर हम नियरेस्ट 10 में राउंड ऑफ करते हैं, 10th प्लेस क्या है, ये, और अगला डिजिट है 1, तो यहां पे 6 में कुछ भी ऐड नहीं होगा, 6 6 एंड 0। तो आप देख पा रहे हैं 660 इज मच क्लोजर टू 661 रादर देन 700। आप देख पा रहे हैं कि जो 660 है वो 661 के काफी पास है और 700 काफी दूर। तो जब भी हम रफ एस्टिमेट लेते हैं तो हमारा जो आंसर आता है वो करेक्ट आंसर से थोड़ा दूर रहता है, और जो हमारा क्लोजर एस्टिमेट है उसमें जो हमारा आंसर आता है वो करेक्ट आंसर के काफी पास आता है। तो इसमें क्वेश्चन में दोनों चीजें पूछी गई हैं, आपको पहले रफ एस्टिमेट भी देना है और उसके बाद आपको क्लोजर एस्टिमेट भी देना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम रफ एस्टिमेट देंगे। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक आया रफ एस्टिमेट। चलिए शुरू करते हैं। तो आप फटाफट से, अब आपको पता तो है 439 को अगर आप इनका जो है 100 डिजिट ले लेंगे, 100 प्लेस, क्योंकि 100 प्लेस से ही हमारा रफ एस्टिमेट होगा। सो नेक्स्ट डिजिट है 3, तो ये हो जाएगा 400। यहां पे भी नेक्स्ट डिजिट जो है वो 3 है, तो ये भी हो जाएगा 300। और यहां पे जो है नेक्स्ट डिजिट 1 है, तो ये भी हो जाएगा 4300। तो आप जब इनको टोटल करोगे तो आपका टोटल आएगा 5000। ओके, नाउ लेट अस टेक अ क्लोजर एस्टिमेट। क्लोजर एस्टिमेट देखते हैं क्या होता है। चलिए, तो अब हम क्या करेंगे, यहां पे जो हमने 100 प्लेस लिए थे वो 100 प्लेस ना लेके हम 10th प्लेस लेते हैं, और उनका नेक्स्ट डिजिट हम चेक भी करेंगे। तो जब हम 10th प्लेस ले रहे हैं, अगला डिजिट है 9, तो 439, क्योंकि अगला डिजिट है 9, तो 3 + 1 4, ये हो जाएगा 440 प्लस नेक्स्ट अगला डिजिट यहां पे 4 है, तो ये रहेगा 330 प्लस अगला डिजिट 7 है, तो ये हो जाएगा 4320। यस, 4320। चलिए आप मेरे साथ ऐड करिए, 0 0 0 दैट इज इक्वल टू 0, 4 3 2, 4 + 3 7 and 2 9। ओके, नेक्स्ट 4 and 3 7, 7 and 3 10। okay, carry 1 and 4 + 1 5, so the answer is 5090, which is much closer to the correct answer. Okay, I hope you have understood. Now let us move to the second question. यहां पे भी हमें क्या करना है, क्लोजर एस्टिमेट और रफ एस्टिमेट देना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वैल्यू देख लेते हैं। तो क्लोजर एस्टिमेट देंगे। आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, क्यों ना हम इसे जनरल रूल से करें, लेकिन पहले ही क्वेश्चन में ये बोला गया है आपको कि ये आपको नियरेस्ट 100 और नियरेस्ट 10 में ही करने हैं। तो प्लीज आप बिल्कुल भी इसमें चेंज ना करें, जो आपको क्वेश्चन में जैसा भी पूछा जा रहा है, आंसर ओनली दैट। सो सबसे पहले यहां पे हमने सबसे पहले क्या निकाला था, रफ एस्टिमेट और क्लोजर। अब पहले हम क्लोजर निकालते हैं। तो क्लोजर निकालने के लिए हम कौन सा डिजिट चेक करेंगे, यस 10th डिजिट। तो 10th डिजिट चेक करा हमने, यहां तो ये 4 है, तो यहां पे कुछ भी नहीं पढ़ना है, तो इट विल बी 1,08,730। क्लियर, ओके। एंड नाउ यहां ये बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 47,000 and 59 will become 600। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड। अब क्या करेंगे, हम इसको माइनस करते हैं। तो now you can see 0 minus 0 that is equal to 0, 3 minus 0, 3 minus 0 is equal to 3, 7 minus 6 is equal to 1, very good, 8 minus 7 is equal to, बताइए, yes 1,
एंड नाउ यहां से 0 से 4 नहीं होगा तो 10, यहां से कैरी लेंगे 10 माइनस 4, 10 माइनस 4 बताइए, यस इट इज 6, तो इट इज 61,130. नाउ लेट अस टेक अ रफ एस्टिमेट. अब कौन सा एस्टिमेट लेंगे हम? रफ एस्टिमेट. यहां पे जगह थोड़ी कम थी, एस्टिमेट, तो हम यहां पे चेक कर रहे हैं, रफ एस्टिमेट ले रहे हैं. तो रफ एस्टिमेट में क्या करेंगे हम, जो वैल्यू हमारी नियरेस्ट 10 में थी अब क्या हो जाएगी नियरेस्ट 100 में. अगला डिजिट 3 है तो ये ऐड नहीं होगा, रफ एस्टिमेट में हो जाएगा ये 1,08,700. ओके, माइनस यहां पे क्या करेंगे हम, ये लेंगे क्योंकि अगला डिजिट यहां पे फिर ज्यादा है तो ये तो वही रहेगा 47,600. चलिए सब्ट्रैक्ट करके दिखाइए. 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 0 0, वेरी गुड. 7 माइनस 6, यस 1, वेरी गुड. 8 माइनस 7, वेरी गुड 1. 10 minus 4, 6. Now you can see 61,130 is more closer to the real answer and 61,100 a little bit far than that. Okay, so I hope you have understood. Now let us move to the third question. Now let us solve the C and D part of the same question and let us first solve the closer estimate. अब हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, क्लोजर एस्टिमेट निकाल रहे हैं. तो क्लोजर एस्टिमेट नियरेस्ट टेंस जो टेंस प्लेस की वैल्यू है उसे मैं ब्लू से अंडरलाइन करता हूं. तो यहां अगला डिजिट 5 है तो ये 2 विल बिकम 3 एंड इट विल बिकम 8,330. ओके, बिकॉज अगला डिजिट यहां पे 1 है तो ये डिजिट बढ़ेगा नहीं, इट विल बी 490. चलिए बताइए आप मेरे साथ सब्ट्रैक्ट करते हैं. 0 माइनस 0 0, 3 माइनस 9 होगा नहीं तो 13 माइनस 9 4, वेरी गुड. नाउ यहां पे बचा है 2, यानी यहां से कैरी चली जाएगी तो 12 माइनस 4 बताइए, यस 8 एंड दिस विल बी 7. तो 7,840. नाउ लेट अस गिव अ रफ एस्टिमेट. अब हम फटाफट से एक रफ एस्टिमेट देंगे और रफ एस्टिमेट के लिए हमें क्या करना होगा, 100 प्लेस देखना होगा. तो इसका नेक्स्ट डिजिट है 2, अगला नेक्स्ट डिजिट जो है 2 है तो ये रहेगा 8300 एंड नेक्स्ट ये क्योंकि अगला डिजिट 9 है तो ये हो जाएगा 500. तो चलिए मेरे साथ सब्ट्रैक्ट करिए. 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 0 0 एंड 13 माइनस 5 बताइए, yes it is 8, so it is 7,800. I hope you have understood. Now let us solve the D part of it and this is the last part of question number 2. So let us first give a closer estimate. सबसे पहले हम क्या करते हैं, closer estimate दे सकते हैं. तो एक बात आप लोगों को याद रखनी है कि आप चाहे रफ एस्टिमेट पहले दें या क्लोजर एस्टिमेट पहले दें, अगर बस इतना ध्यान रखें कि व्हेनेवर यू आर मेंशनिंग क्लोजर एस्टिमेट, जब भी आप क्लोजर एस्टिमेट मेंशन कर रहे हैं तो आप उसे नियरेस्ट 10 में राउंड ऑफ करेंगे. अगर आप रफ एस्टिमेट मेंशन कर रहे हैं तो आप उसे नियरेस्ट 100 में राउंड ऑफ करेंगे. तो क्लोजर है तो नियरेस्ट 10 में राउंड ऑफ करेंगे. अगले दोनों ही डिजिट इनके 5 या उससे बड़े हैं तो ये हो जाएगा 4,89,350 माइनस 48,370. चलिए माइनस करते हैं. तो 0 माइनस 0 विल बी 0, 15 minus 7 will be 8. Okay, now this is 2, so 12 minus 3 is equal to 9. यहां से एक कैरी चला गया था पहले से ही तो 8 minus 8 that will be 0. Next 8 minus 4 is equal to 4 and this is 4. This is your closer estimate. So now let us try to solve the rough estimate. रफ एस्टिमेट. तो रफ एस्टिमेट हमारा क्या होने वाला है देखिए. तो रफ एस्टिमेट में हम कौन सा डिजिट चेक करेंगे, यस 100 प्लेस. तो 100 प्लेस यहाँ पे ये है हमारा, तो हम चेक करेंगे नेक्स्ट डिजिट. यहाँ पे तो 4 है तो यहाँ कुछ ऐड नहीं होना है और यहाँ पे ये डिजिट 6 है तो यहाँ पे 3 विल बिकम 4. तो ये हो जाएगा 4,89,300 है ना. 4,89,300
89,300 और ये वाला हो जाएगा 48,000 और ये 3 की जगह 4 हो जाएगा 400। चलिए माइनस करते हैं। 0 माइनस 0, 0 माइनस 0 0, 13 माइनस 4, बताइए 13 माइनस 4, वेरी गुड, दैट इज 9। नाउ दिस इज, यहां से कैरी गई थी तो 8 माइनस 8 0 ही रहेगा, 8 माइनस 4 4, and this is the rough estimate. I hope you have understood.